today's session is on performance management system, and now we would like to call upon the panel for today, starting from Mr. Akhtar Ahmed. He is the Director HR Gets Mawama. Sir, if you could come here. Thank you. Second up is Ms. Tahmeena Ali, Director HR Yunus Textile Mills. Third panelist is Ms. Ambreen Malik, CHRO FedEx Pakistan. Next up we have Nazia Mateen, who's Group Head, Takaful Pakistan. Takaful Bazaar Pakistan. Yeah, let me correct that. And last but not the least is Faiza Faisal, Group HR, HPFC. Akhtar Ahmed, working in Get Pharma as Director HR, looking after their global HR. इससे पहले I was in TCS, Smile Industries, Berg, Gul Ahmed, Pizza Hut, ICI. So these are the companies. अभी हम बात यही कर रहे थे तो I think मुझे हो गए कुछ 29 साल in HR. तो whatever little I know, inshallah, you will see कि क्या बात कर सकते हैं उसके ऊपर. Assalamualaikum ji, my name is Tahmeena. I am heading the HR at Yunus Textile. Industry में मुझे 30 years हो गए हैं human resources में, and I have been working in a different sectors, banking, pharma, FMCG, manufacturing. So that's the whole story. Assalamualaikum, my name is Ambreen Malik. At the current moment, I am on the role of Country Head HR for FedEx under the umbrella of Jerry's International. I possess overall 19 years of HR working experience, started up my career with Mobilink, then with a bank, then hospitality also, and I've worked with Habib also. So when it comes to HR is not just a job, and nobody can do HR for the sake of a job. It's a passion, be it performance, be it polishing the talent or learning. So if it is from your heart, then only you can be an HR professional, and I am one of those. Thank you. Assalamualaikum, I'm Nazia Mateen. I'm currently heading HR of Takaful Bazaar. It's an insurtech company. Before that, I was associated with banking sector for 18 years. I worked in Dubai Islamic Bank looking after HR legal and compliance and DEI assignment. Before that, I was looking after the HR operations and performance management of Bank Islami. So overall, I have about 19 years of experience in banking and now in InsurTech company. Thank you. Assalamu alaikum. And good afternoon. This is Faiza Faisal. Currently, I'm associated with the Group Head HR with the HPFC. Prior to that, I have 20 years of experience all over in HR. Served with different sectors. I served with the banking sector, courier, education. And of serving people is my passion. So this is my choice to be in HR and serve in HR. Thank you. We'll try and see from today's discussion that how much of it can we implement. So I'll come up with questions for all of you, and obviously some of it will come from you as well, as and when you feel that's suitable. But starting from, I'll start from Tahmeena. Performance management, performance appraisals, annual cycle. So in your opinion, what do you think is, as against the common perception, परफॉर्मेंस अप्रेजल की जब ऑर्गेनाइजेशन में बात होती है तो लोगों का दिमाग फौरन जाता है इंक्रीमेंट की तरफ कि अच्छा भी कुछ मिलेगा इसके बाद. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, व्हाट्स इन योर ओपिनियन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी राइटली सेड. जब परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात होती है तो परफॉर्मेंस भूल जाते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं इंक्रीमेंट में परसेंटेज कितनी है. This is such an important factor for any organization to gauge the performance, because you need to identify the high performers and the low performers and then average performers. 30 साल के तजुर्बे में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आज हम बात कर रहे हैं. पहले ज़माने में MBO और गोल सेटिंग्स होती थी
जिसपे सब कहते थे कि जॉब डिस्क्रिप्शन है तो इसका मतलब है हमने अपने गोल बना लिए। तो जॉब डिस्क्रिप्शंस गोल्स नहीं होते। दैट इज़ द वन पार्ट। द सेकेंड पार्ट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हैज़ टू बी लिंक विद द रिवॉर्ड स्ट्रेटजी। क्योंकि अगर आप किसी एम्प्लॉय को इफ़ यू आर गेजिंग इट इन दैट मैकेनिज्म एंड यू आर टर्मिंग इट एज ए हाई परफॉर्मर और अ लो परफॉर्मर, इट हैज़ टू बी लिंक विद योर रिवॉर्ड स्ट्रेटजी। अच्छा, डिलेमा ये है कि एम्प्लॉय समझता है मैंने सारा काम किया है तो ही शुड बी टैग इन अ वेरी गुड और इन एन एक्सलेंट रेटिंग, बट वो जिसने सारा काम किया है ही शुड बी टैग्ड एज ए गुड। तो वहाँ पे चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशन लेवल्स को मीट करना मुश्किल होता है। रिवॉर्ड स्ट्रेटजी हैज़ टू बी लिंक विद द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, बिकॉज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस वेयर यू आइडेंटिफाई योर high performers and an average performers and a low performers. अगर performance management is not linked with reward and with the gauging mechanism, तो ये एक सिर्फ एक्सरसाइज रह जाएगी कि HR की डेडलाइन है, अप्रेजल भर के भेज दो। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अख्तर, आई वुड लाइक टू present before you the perspective of it. It all starts from the goal setting exercise or KPI setting. So when we see it actually, we find that a lot of organizations, not all, but quite a few, they end up starting this exercise in December, if it's a July to June cycle. So what has been your experience when it comes to goal setting and capturing the real essence and spirit of it? Okay, carrying forward what basically Tamina said, हमारा और इनफैक्ट इंक्लूडिंग माई सेल्फ जब हमने ज्वाइन किया था, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब ही परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होती है, जब साल का एंड आएगा तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगी, उससे पहले कुछ भी नहीं था। बट थिंग्स, अभी हम बात कर रहे थे कि भी स्टार्ट जब हमने किया था तो पर्सनल डिपार्टमेंट थे एंड देन थिंग्स इवॉल्व। तो उसी तरह से जो HR की प्रैक्टिसेस हैं वो भी बड़ी इवॉल्व करती रही हैं, हमारे पास भी, हर जगह, ग्लोबली भी और इनफैक्ट पाकिस्तान में भी। एक चीज़ जो हमेशा कहता रहा हूँ, आई थिंक हम जब लास्ट थे तब भी हम यही बात कर रहे थे कि फंडामेंटल डजंट चेंज। एक चीज़ याद रखिएगा। तो व्हाट इज़ द फंडामेंटल इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? अनलेस वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द फंडामेंटल इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, हम शायद इस चीज़ को कैप्चर नहीं कर सकें कि जी हमने काम करना क्या और कैसे करना। तो फंडामेंटल इज वेरी बेसिक। तो एक चीज़ तो ये हमें पता होनी चाहिए कि हमने कि परफॉर्मेंस है क्या, व्हाट इज परफॉर्मेंस। सो बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट परफॉर्मेंस इज एंड देन वी विल बी एबल टू मैनेज इट। हमें यही नहीं पता हो कि वो है क्या, मार्केटिंग है क्या, and then we start managing it, we might be managing something else, you know. So performance is knowing that whatever you want to achieve, you are achieving it or not, in a very simple term. आप जो करना चाहते हैं वो आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, that's it। ठीक है, बिल्कुल ठीक। So this is what performance is। और इस पूरे साइकिल में आपने मैनेज ही इस चीज़ को करना है कि जी जो आप करना चाहते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंडिविजुअल, वो आप कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे। जैसे ट्रेडिशनली यस, इसका एक तरीका था जो आप पूरा एक साल गुजारते थे और साल गुजारने के बाद आप देखते थे कि जी आपने वो काम किया या नहीं किया जो आप करना चाह रहे थे। तो एक चीज़ तो ये बड़ा समझना ज़रूरी है कि जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो इवॉल्व करके आई है यहाँ तक अब, वो यस स्टार्ट इसी तरह से हुई थी कि साल के शुरू में ऑब्जेक्टिव, साल के एंड पे असेसमेंट, जैसे हर जगह होती है। हम शायद बहुत सारी चीज़ें मिस करती हैं। हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पूरी लाइफ देखी है, आई थिंक हर उस शख्स ने जिसने फॉर्मल एजुकेशन ली। क्लास स्टार्ट करता है, साल के एंड में एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम दे के पता लग जाता है कि जी उसने साल भर पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। सिंपल। यही चीज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल की है कि कुछ ना कुछ आपने अचीव करना है, एक पीरियड आप गुजारेंगे एंड देन यू विल सी कि जी आपने वो चीज़ अचीव करी या आपने वो चीज़ अचीव। तो जो चीज़ स्टार्ट होती है हमेशा से वो इस चीज़ से स्टार्ट होती है कि जी आपने अचीव क्या करना है। ठीक है, मैंने अगर
मेडिसिन पढ़नी है तो मैं स्टार्ट यहाँ से लूँगा कि जी मैंने मेडिसिन पढ़नी है। तो परफॉर्मेंस साइकिल के अंदर भी जो सबसे इनिशियल स्टेप है वो ये है कि जी आपने अचीव क्या करना है, आपके गोल्स क्या है। ठीक, कुछ भी हो सकते हैं, किसी फॉर्म में भी हो सकते हैं, राइट फ्रॉम द वेरी बेसिक फॉर्म टिल मोस्ट एडवांस फॉर्म जिसके अंदर बैलेंस स्कोर कार्ड आए और बहुत सारी और SIA आए, बहुत सारी और चीज़ें। तो द फंडामेंटल इज दैट यू हैव टू हैव समथिंग टू बी जज्ड ऑन। कोई ऐसी चीज़ आपके पास होनी चाहिए जिस पे आप ये देखें कि जी मैंने इसकी परफॉर्मेंस को किस चीज़ पे जज करना है, क्या कहना है, क्या चीज़ होगी तो मैं कहूँगा कि चीज़ सही हुई है, और क्या चीज़ नहीं होएगी तो मैं कहूँगा ये चीज़ सही नहीं हुई। तो यू हैव टू हैव अ यार्डस्टिक दैट इज टूल होना what we चाहिए। call, yeah, that we call goals। तो ये goals की इम्पोर्टेंस जो है परफॉर्मेंस साइकिल के अंदर वो ये है। तो दिस इज व्हाट यू आस्क्ड। ये लाइक होते कैसे में, सॉरी आपका क्वेश्चन जो था वो नहीं बिल्कुल, क्वेश्चन यही था कि गोल सेटिंग या KPI सेटिंग जो है वो कई दफ़ा उसमें डिले होता है। जी एग्जैक्टली। और वो डिले किन वजूहात की बिना पर होता है, व्हाई डज दैट हैपन? एग्जैक्टली। अच्छा तरीका तो ये है कि आपका जो भी साइकिल स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको पहले पता हो कि जी आपने अचीव क्या करना है। ठीक है, क्रिकेट मैच में आपको ये पता होता है कि आपने जीतना है ना, अगली टीम को हराना है। तो ये आपको क्रिकेट मैच के शुरू में पता लगता है, बीच में आपको कोई नहीं कहता कि यार ये काम करो। आजकल करते हैं वैसे सट्टे शट्टे लगाने के लिए कि यार ये काम करो, बट अच्छा तरीका ये है कि आपको मैच के शुरू में पता हो कि जी मैंने अचीव क्या करना है। तो आपका जो भी साइकिल शुरू होता है उससे एक दिन पहले भी अगर पता लग गया आपको कि जी आपने क्या करना है, तो दैट इज आई थिंक द राइट अप्रोच। डिले एग्जैक्टली इसी वजह से होता है, फॉर 2 रीजंस। हम इस चीज़ को भूल जाते हैं HR वाले कि बिजनेस के पास HR के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। ठीक है, तो हम जागते हैं दिसंबर में और हम कहते हैं ये 1 महीना है, ये सारा काम करके हमें दे दो क्योंकि हमें जनवरी में जाना वो अप्रेजल्स भी करने हैं और नेक्स्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव भी करने। ठीक है, एंड देन इवन आज की तारीख में भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में ये सवाल आते हैं और ये सवाल HR के पास नहीं होते, और वो एक सही कह सकते हैं कि देखें जी मैंने तो इस साल की फॉर इंस्टेंस आप सेल्स के पास जाएं, सेल्स में सेल्स डिपार्टमेंट, और आप जाके कहें कि जी मैंने आप अगले साल के गोल ज़रा सेट कर दें, एंड यू गो देयर इन सितंबर, और वो ये कहे यार मैंने साल तो क्लोज किया नहीं, मैं अगला साल कैसे करूँ, एंड वी डोंट हैव एन आंसर कि जी कैसे कर सकते हो सकता है यार ये, लेकिन कैसे कर सकते हो, फ्लोटिंग गोल्स कैसे होते हैं। ठीक है, किस तरह से आप उसको लेके चल सकते हैं, हमारे पास आंसर नहीं। सो दैट्स व्हाई वी फेल। लेकिन अच्छा तरीका यही है जैसे आपने कहा कि दैट हैज़ टू स्टार्ट बिफोर द साइकिल, एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल आपके हर एम्प्लॉय के पास परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव होने चाहिए किसी भी शक्ल में। मैंने कहा कि क्रूडेस्ट फॉर्म से लेके मोस्ट रिफाइंड फॉर्म, कोई भी चीज़। वो सेइंग है ना कि जी ये देखना नहीं चाहिए कि बिल्ली काली है या सफ़ेद, ये देखना कि चूहा पकड़ सकती है। तो अगर क्रूड फॉर्म भी आपके लिए चूहा पकड़ रहा है, चलने दें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच अख्तर। ऑल्दो आपने HR को कटहरे में खड़ा कर दिया, तो मैं कोशिश करूंगा इस कटहरे से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बिकॉज दिस इज सर्टनली वन ऑफ द रीजंस, आई कंप्लीटली एग्री विद यू, but there are other reasons as well why it doesn't happen, which could be support from the top management, support from the CEO, or people's understanding that HR perhaps had to develop in the organization, wo develop nahi hui. Thank you so much, Afan Saab. I think you have touched a very sensitive topic. I just want to add few points. What I think, and I'm sure you people will endorse me, performance management is actually the core of human resource management. Whatever we do is because of performance. The relationship between employee and employer is based on performance. Employer demands performance and employee delivers performance. So this is the actually base. So what I think is, and obviously I would like to take your point on it, all other functions of HR, be it recruitment, training development, employee engagement, or even disciplinary actions or activities are all indirectly or directly supporting performance management. All are giving input. For example,
मे बी विल सी कि क्या रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू टैप द बेस्ट परफॉर्मेंस और टैलेंट परफॉर्मर, क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जो कि इन्हांस करे परफॉर्मेंस, क्या इंगेजमेंट एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे सस्टेनेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बेस करती हो. सो ऑल एक्टिविटीज एक्चुअली ऑफ HR एक्चुअली सपोर्टिंग एंड गिविंग द फीडबैक टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. अब जो एक सवाल एक नॉर्मली मैं देखती हूँ लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल. सो बेसिकली यहाँ पे बस मैं जब पढ़ रही थी ऐसी सुबह तो एक मुझे बड़ी अच्छी एग्जांपल मिली. आई थॉट आई मस्ट शेयर. आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ स्पोर्ट्स एनालॉजी विच सेज कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एथलीट हूँ और एक मेरे साथ कोच एसोसिएटेड है और कोच जो है वो मुझे गाइडेंस दे रहा है, मेरे गोल सेट कर रहा है, मेरी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहा है, फीडबैक दे रहा है और फिर मुझे असेस कर रहा है. सो ये पूरा डेवलपमेंटल और कंटिन्यूस जो पूरा एक्सरसाइज थी, दिस इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. एंड अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि उसने आफ्टर द सीजन उसने सिर्फ मुझे एक असेस किया और एक समरी ऑफ माई परफॉर्मेंस शेयर की, दिस इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल. सो बेसिकली दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस appraisal. So I'm safely to say कि performance appraisal is basically a sub activity of overall performance management. अब हमारा बीइंग HR चैलेंज क्या होता है? हमारा चैलेंज ये है कि हम जो है वो क्योंकि अप्रेजल में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि अप्रेजल के साथ आपका, जैसे कि अशन ने भी कहा, आपने भी राइटली पॉइंटेड आउट कि क्योंकि उसके साथ आपका मॉनेटरी बेनिफिट एसोसिएट होता है. सो आपका सारा फोकस ये होता है कि किसी तरीके से आप जो है वहाँ पे रेटिंग के लिए फाइट करें, बिकम डिफेंसिव. तो जिसकी वजह से तो जो कोर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एसेंस है वो ख़त्म हो जाता है. सो उसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशंस हैं, किस तरह से करें. बीइंग HR, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस. वी आर द कस्टोडियन ऑफ दिस प्रोसेस. अदर स्टेक होल्डर्स लाइक एम्प्लॉयर, सुपरवाइजर, योर लीडरशिप, maybe the employee, all will be in a defensive position. और वो सिर्फ ये चाह रहे होंगे कि किसी तरीके से अप्रेजल अच्छा हो जाए. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहीं पीछे रह जाती है. उसके लिए क्या करना चाहिए? अपने गोल सेटिंग करनी है और क्यों नहीं होती. ठीक है, कोई सिस्टम आपको किसी साइकिल में या किसी एक पीरियड में चलाना पड़ता है. ठीक है, तो जो जर्नली तरीका है वो यही है कि जी एक वक्त है जो साल का शुरू है, यानी परफॉर्मेंस पीरियड है, जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, और एक है जहाँ पे आप परफॉर्मेंस पीरियड को ख़त्म करेंगे, जहाँ पे अप्रेजल आएगा. लिया कि अप्रेजल इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. ठीक है, बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का स्टार्ट अगर थोड़ा सा टाइम लगेगा. देखें, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का स्टार्ट होता है गोल से. जैसे आपने कहा ना कि कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव सेट होता है. तो जी आप ये कहते हैं कि मैंने एज एन इंडिविजुअल क्या अचीव करना है, लेकिन उससे पहले भी एक बड़ी चीज़ है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपने क्या अचीव करना है. ठीक है, और जब तक आप ये नहीं सेट करते कि जी एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना है, उस वक्त तक आप ये नहीं डिटरमिन कर सकते अच्छे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में कि इंडिविजुअल ने क्या करना. ठीक, इंडिविजुअल्स हैज टू बी अ सबसेट ऑफ कोर्स. ठीक है, अच्छा अब आप आ जाएं गोल के अंदर. जो और आपके अच्छा तरीका, 3-4 चीजें होती हैं. अगर किसी आप वेटर का गोल मैं कहूँ सेट करें तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि जी वो टाइमली खाना लाए, आपको खाना लाए और दे दे. ठीक है, एटीट्यूड कर दे, सारी चीज़, बहुत सारी चीज़. ठीक है, अब आप जितनी बातें कर रहे हैं ना, इसमें जो ऑब्जेक्टिव बेस है ना, जिसको आप MBO कहते थे, वो 3 चीज़ होगी. खाना उठाए, खाना ला के रखे, प्लेट खाली है उठा के ले जाए. दिस इज व्हाट इट इज, राइट. बाकी आपने जितनी बातें करी वो क्या है? एटीट्यूड, सर्विस, फलाना. ठीक है, ये कैसे आती है इसको, और ये परफॉर्मेंस कैसे है?
ठीक, तो दैट व्हाट पार्ट इज वेरी इजी, जिसके लिए सारी ऑर्गेनाइजेशन में और सारा बिजनेस तैयार होता है, ठीक है, जहां पे आप थोड़ा सा पुश करके हेल्प करके अचीव करवा सकते हैं। हाउ पार्ट का क्या करेंगे आप? That's very subjective. वेरी सब्जेक्टिव But very important. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास कोई वेटर आए किसी रेस्टोरेंट में, यूं खाना फेंक के चला जाए, मैंने तो ऑब्जेक्टिव अचीव कर दिया, दूसरे दिन जो आपके कस्टमर है वो आना बंद कर देंगे, लेकिन कहेगा मैंने तो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया। 30 सेकंड में खाना मुझे सर्विंग विंडो से लेके टेबल के ऊपर लेके जाना था, मैं 25 सेकंड में लेके गया। आप कैसे कह सकते हैं मेरी परफॉर्मेंस अचीव हुई? तो दैट हाउ पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो आपने जैसे कहा कि जी कैसे मैनेज होगी, तो आई थिंक क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी आगे ऐसी चीजें हैं जहां हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे कि वो कैसे होंगे। But what you have just touched actually is extremely critical, but a very advanced form of performance management. That's how it should be. Yes. But unfortunately, कई जगहों पर, सब जगहों पर नहीं, हम तो बहुत शुरू के पार्ट में फंसे हुए हैं। देखें, और हाउ तक जो है, हाउ के लिए जो कुछ डाला जाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वो भी ऐसे फॉर्मेट, डाल देते हैं, वो भी हम ऐसे ही डाल देते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है ना। उसके लिए भी किसी को कोई फेयर आइडिया नहीं है कि जी मतलब से मोस्टली कि जी इसको करना क्या है, यू नो, इसके साथ मैंने करना क्या है। एंड दैट इज अगेन इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग जो आप बात कर रही थी परफॉर्मेंस की डेवलपमेंट में। मैच वो एक खेलता है एथलीट, उसने एक फेंका अरशद नदीम ने 92.97, उसने बाकी जितने काम किए किसी को नजर नहीं आ रहा हो। True that. Amreen, you were about to say something, but before you respond, to ask a question. On and then we'll conduct. Yeah, I just wanted to add, जैसे हमने लास्ट सेशन में कहा था कि HR is a facilitator of the business and a bridge between the employer and the employee. So ये डिले क्यों होता है? क्योंकि HR वाला खुद अपने आप को बहुत मासूम और मिस्कीन समझता है। वो कहता है जब तक मुझे CEO नहीं बोलेगा I cannot do anything, क्योंकि बिजनेस डॉक्यूमेंट डेवलप नहीं हुआ होता। सो बिजनेस के जो टारगेट्स हैं वो साल के शुरू में, जो भी साल शुरू हो, आप चाहे वो जनवरी से शुरू करें या फिस्कल ईयर से आपकी बुक्स शुरू होती हों, आपने जब तक आपके बिजनेस स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे आपको बिजनेस गोल नहीं पता होगा और उसकी अर्जेंसी नहीं पता होगी, चाहे वो टैलेंट की प्लेसमेंट है, चाहे वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट टू एनरिच दैट टैलेंट है, या उसकी परफॉर्मेंस की हैंडलिंग है, तब तक जब तक HR ओनरशिप नहीं लेगा अपने स्कोप की और डोमेन की, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज हार्डकोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एन CHRO, राइट। कैसे मैं कह सकती हूँ कि जी पूरे 6 महीने मैंने कोई काम नहीं किया और दिसंबर में या नवंबर में अचानक से मैंने तमाम HODs को एस्केलेट किया और कहा कि जल्दी जल्दी अपने ऑब्जेक्टिव्स और परफॉर्मेंस की जो KPIs हैं वो सबमिट करा दें। वो जिस नवंबर में जब सबमिट कराएंगे तो ज़ाहिर है रीसेंसी इफेक्ट तो आ गया, ट्रांसपेरेंसी तो कहीं रही नहीं, तो इसका खुमियाजा ऑर्गेनाइजेशन भुगतेगी बिकॉज ऑफ द लीस्ट बॉदरेशन ऑफ द HR प्रोफेशनल सिटिंग ऑन द सीट, राइट। सो हैविंग सेड दैट, कीपिंग इट शॉर्ट, कमर्शियल ऑक्यूमेंट डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मेजॉरिटी ऑफ द HR प्रोफेशनल्स इस चीज़ से आ रही हैं, और क्योंकि वो कहते हैं कमाना सिर्फ सेल्स वाले का काम है, सैलरी डिसबर्स करना सिर्फ फाइनेंस वाले का काम है, एडमिन करना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और हमारा काम क्या है? सिर्फ बुक कीपिंग करना, किताबों के पेपर के पेट भरना, ऑडिट कंप्लीट करवा लेना, कंप्लायंस करवा लेना। जब तक हम इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगे, पाथ टू सक्सेस 2030 पे रीच नहीं कर सकते। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैं एज एन ओनर ऑफ द बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करूँगी। KPIs सेल्स करनी है, कितनी करनी है, कितने परसेंटेज से ग्रोथ लानी है और कब तक लानी है, जैसे सर ने कहा, राइट। क्वार्टरली एवेलुएट करना है, बाय एनुअली करना है या साल में करना है। अप्रेजल तो उस चीज, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम इनिशिएट करेंगे। एंड अगेन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि जितनी आप महीने की तनख्वाह दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, जितनी उसके ऊपर आपने अलाउंसेस, जितने भी आपने फाइनेंसेस इन्वॉल्व किए हुए, इंगेज किए हुए,
उसका रिटर्न क्या आ रहा है बिजनेस को बाय द एंड ऑफ द ईयर, आप यही देखोगे ना, परफॉर्मेंस ही रिफ्लेक्ट करेगा ना। सेल्स वाला कमा कितना रहा है, मार्केटिंग वाले ने मार्केटिंग में क्या माइलेज अचीव किए, HR वाले ने लर्निंग एंड डेवलपमेंट में कहाँ ले गए, एंगेजमेंट में कहाँ ले गए, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग में कहाँ ले गए। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डिले HR की वजह से ही होता है, और इसके डिले को पूरा करने के लिए HR को अपना बिजनेस ऑक्यूमेंट डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज गुड एज फाइनेंस, एज गुड एंड इम्पॉर्टेंट एज सेल्स। Thank you, Ambreen. Tamina would like to add, and then I'll conduct Nazia. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है HR का पार्ट है। कितने लोग आप लोग बिलीव करते हैं एवरी लाइन मैनेजर इज एन HR मैनेजर? HR का पार्ट है कि HR ने टूल्स बनाए हैं, उस टूल्स को आप पेनिट्रेट करें अपने कल्चर में। आप टूल्स बना के आइसोलेशन में रख दें और कह दें 1 तारीख को 30 तारीख को अप्रेजल कर दो, कभी नहीं होगा। आप पेनिट्रेट करें, आप बिजनेस पार्टनरिंग रोल पे आएँ, आप बताएं कि इसका फ़ायदा क्या है। अब होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल्स दूं। वो एम्प्लॉई जिसको अप्रेजल में नीड इम्प्रूवमेंट किया है, मगर मंथली एंड पे आप उसको रिकग्निशन का सर्टिफिकेट देते हो, तो आप क्यों देते हो? आप उसको रोको कि आपने नीड इम्प्रूवमेंट तो अप्रेजल में किया है और क्वार्टर ऑफ द एम्प्लॉई को आपने उसको बना दिया है। वाई? HR ये क्वेश्चंस नहीं कर रहा है। दैट इज़ वाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है सिर्फ एक बुक्स की तरह रह गई है। अगर कल्चर ट्रांसफॉर्म करने हैं तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ द की, बट उसमें खाली HR का रोल नहीं है। उसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर ट्रांसफॉर्म करके मैनेजमेंट को अपने साथ लेना होगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, गोल सेटिंग दिसंबर में होती है। गोल सेटिंग बिल्कुल दिसंबर में होती है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम HR वालों के साथ है, उनका कैलेंडर सीधा नहीं होता। गोल सेटिंग सीधी करें जब बजट हो रहा हो फॉर द नेक्स्ट ईयर। आप उस वक्त गोल सेटिंग इनिशिएट करते हैं कि यू पीपल आर डूइंग अ बजटिंग एक्सरसाइज, स्टार्ट वर्किंग ऑन अ गोल सेटिंग। द टॉप मैनेजमेंट विजन इज देयर, योर डिपार्टमेंटल गोल्स आर देयर, आपकी गोल सेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि वो HR वाले कहते हैं अभी से अभी काम करना पड़ेगा, दिसंबर में गोल सेटिंग है, अप्रेजल भी है, जनवरी में सैलरी भी देनी है, तो क्या करें? सो द थिंग इज, करना तो है ये HR का है, टूल्स दे दिए, एग्जीक्यूशन इज द बिजनेस पार्टनरिंग रोल। उसमें देखना है कितने सक्सेसफुल हैं HR वाले। Thank you, Ms. Tamina. Excellent points. Business partnering पे आपने touch upon किया. You touched upon the alignment of the top management with the HR department as a main business partner, which will carry forward the legacy of the organization in terms of employee engagement, employee improvements. Stemming from those arenas, I would like to ask Nazia, how do you as a HR manager would basically take into account bridging the gap from the top management? जैसे मैम ने बात करी कि जब बजट सेट हो रहा है तब आप इनिशिएट करिए अपनी गोल सेटिंग एक्सरसाइज। दैट्स एन एक्सेलेंट टाइम where you align your KPIs. Majorly आपका बिजनेस ड्राइव कौन कर रहा है? बिजनेस यूनिट्स ड्राइव कर रहे हैं। सपोर्ट के तो तब जाके बनेंगे गोल्स when the business KPIs are set. बिजनेस बता रहा है कि मुझे डिपॉजिट बेस, बिकॉज आई हेल फ्रॉम अ बैंकिंग बैकग्राउंड, सो आई टेक द केस इन पॉइंट फ्रॉम देयर। बिजनेस कह रहा है कि मैं डिपॉजिट बेस अपना XYZ नंबर से इंक्रीज करूँगा। Once that is decided and that is approved, then the support services would come कि मैं अब इसको facilitate किस तरह करूँगा। How would you as a HR manager would start to bridge this gap and bring this sense into an organization कि sir, this is what needs to be done? What are the challenges that you might face? Because we as an audience we are very well hearing all this, but at the end of the day, at the ground reality, when you're sitting with the top management and they all they hear is the numbers, how that HR role inculcates in that organization and how does it take it forward? So tell me your viewpoints on that. Yeah, Muniba, so the dilemma is one that all the panelists have already talked about कि गोल सेटिंग जो है उसका कोई टाइम फ्रेम हमारे पास नहीं है। हम अपनी मर्जी से या जब हमारी आँख खुलती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को लेकर, उस वक्त गोल सेटिंग हो रही है। वी नीड टू स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉर दैट ईयर। ऑलराइट, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि साल के इस महीने में या टुवर्ड्स दी एंड ऑफ Q2 अगले साल की प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं
that where do they want to start the next year from. ठीक है, it's very important कि हमारी business strategy क्या है और साल के आखिर में हम अपनी कंपनी को A से B तक या A से Z तक कहाँ पर देखते हैं और वो सफ़र पूरा करने के लिए हमें क्या क्या अचीवमेंट्स करनी होंगी. ऑब्वियसली द कंपनी इज कंप्राइजेस ऑफ ऑल दी डिपार्टमेंट्स, तो डिपार्टमेंटल गोल्स के अंदर वो फिर ब्रेक डाउन किए जाएंगे. सो एवरी डिपार्टमेंट विल हैव देयर ओन स्कोर कार्ड कि वो सारे स्कोर कार्ड जब मिलाकर देखा जाएगा, सम ऑफ दैट वुड बी एन अचीवमेंट टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So we have to have the goal setting exercise towards the start of the year or whatever the time, but start of the year, way before the start of the year or just the beginning. Uske baad it is very important that we have frequent feedback session and monitoring of the progress as well. What we lack as a nation is transparency and fairness in our communication. सबसे ज़्यादा हमें मसला क्या है, अगर मुझे किसी को ये बताना है कि फ़ायज़ा आपने बहुत अच्छा काम करा, उसके लिए तो मैं अपना हाथ रेस कर लूँगी, that I want to be that messenger to tell the Faiza, to tell Faiza, you're a brilliant performer, star performer of the organization. लेकिन अगर मुझे कहीं पे जाकर ये बताना है कि नाज़िया आपने अपने गोल्स मीट करने नहीं किए हैं और you're lacking behind, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन कितने मैनेजर्स हैं जो कि कर लेते हैं आसानी से. अगर कुछ अच्छा किया है तो एज अ लाइन मैनेजर मैंने तुम्हारा अप्रेजल बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगर मैंने रेटिंग तुम्हारी 5 की थी और तुम 3 पर आ गए हो तो वो HR ने काट दिया. ठीक है, एंड हियर कम्स द रोल ऑफ HR मैनेजर बट नॉट एन HR मैनेजर, जो कि तहमीना ने बात करी कि कितने लोग हैं जो कि नॉन HR मैनेजर्स हैं. इट्स अ प्रॉपर थियरी बिहाइंड इट कि इवन अ फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर कैन ऑल्सो बी एन HR मैनेजर. क्योंकि साल के आखिर में लगता है कि सबको दिसंबर में काम ख़त्म कर देना चाहिए और सिर्फ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करनी चाहिए. क्यों ओन नहीं करते डिपार्टमेंट्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्सरसाइज को? क्योंकि उनको लगता है ये सिर्फ HR का काम था और HR ने अपना काम मेरे मत्थे क्यों मार दिया है. वाई आई एम डूइंग द अप्रेजल्स, मैं क्यों लोगों के साथ फीडबैक सेशन कर रहा हूँ. मेरे जो स्टार परफॉर्मर्स हैं मैं सिर्फ उनके साथ बैठूंगा, जो डिफ़िकल्ट परफॉर्मर्स हैं या जिनकी परफॉर्मेंस के ऊपर चैलेंज प्रोसेस रन होना है, ठीक है, उन परफॉर्मर्स को HR के पास भेज देते हैं. वाई इट ऑलवेज हैपन्स टू अस इन अ रूटीन जॉब कि अगर कोई मसला क्रिएट होगा या कोई ग्रीवेंस होगा तो लाइन मैनेजर जो है फ़ौरन वो बॉल जो है पास कर देता है HR के रूम में, बिकॉज वी लैक टू कम्युनिकेट प्रॉपरली इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. तो हमारे यहाँ फ्रीक्वेंट फीडबैक का बहुत ही ज़्यादा आई वुड से कि फुकदान है. ठीक है, वी हैव इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स. इफ़ वी look at some research, there are companies like Google, there are companies like Deloitte, Netflix, Uber, जिन्होंने annual feedback session ख़त्म कर दिया है and they have replaced it with more continuous flexible feedback session. They have frequent progress check-ins of the employees. ठीक है, they are looking at the feedback session कि अगर कोई project चल रहा है, let's sit down together, I'm going to give you a feedback where you are lacking, how we can adjust your efforts, how we can move ahead and change the strategy towards the achievement of the objective. But here in Pakistan, we are still following the traditional style or method of performance management कि साल के आखिर में एक मर्तबा annual exercise की जाएगी, feedback भी annually ही मिलेगा. So we need to understand how the international or global examples are transitioning themselves, because whatever was good or best yesterday is not a best method today. We need to improvise on it. Right. For your contribution, Ms. Tamina would like to contribute something. बात हो रही है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, हम पढ़ रहे हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में. जो हमारे शोल्डर पे राइट और लेफ्ट रोज़ हो रहा है वो क्या है, जो जज़ा और सज़ा जब हम उस मालिक से मिलेंगे वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है. दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट इज़ कि इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नहीं है. आई विल नॉट एग्री ऑन दैट. आई एम इन दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 30 years. आप लोग में से कुछ उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे. इस इंडस्ट्री में अगर अशर और आपको याद हो, ACR कॉन्सेप्ट होता था, एनुअल कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट. नहीं, मैं उतना पुराना नहीं हूँ. इतने पुराने नहीं हो, ओके, मैं पुरानी हूँ. सो द थिंग इज ACR होता था, एम्प्लॉय को पता भी नहीं चलता था
और ACR होके ग्रुप हेड साइन करके उसकी फाइलों पे लगा देते थे और नहीं पता चलता था। इंडस्ट्री में चेंज आया है, उस ACR के बाद गोल सेटिंग बने हैं, MBO अप्रोच आई है, बैलेंस स्कोर कार्ड की बात कर रहे हैं हम लोग इस वक्त 360 डिग्री फीडबैक की बात करते हैं। हर इंडस्ट्री में हर जगह नॉर्म में चेंज आ रहा है। रोल पहले मैं बात कर रही थी कि हम लोग जब थे तो पर्सनल होता था, हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। एडमिन, पर्सनल, IR, HR, पीपल्स मैनेजमेंट, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डे 1 से चल रही है, टूल्स चेंज हो गए हैं। देखिए टूल्स देना किसका काम है? वी ऑल आर सिटिंग हेयर एज ए चेंज एजेंट, क्योंकि कल्चर ट्रांसफॉर्म HR करता है टॉप के साथ। तो अगर हम टूल्स ही नहीं दें उस कंपनी में जिस कंपनी में बैठे हुए हैं और हम एक्सपेक्ट करें ग्रुप हेड 15 दिन के अंदर हमें गोल्स देगा, तो वो नहीं देगा। आप उसको समझाएं, आप बेनिफिट्स बताएं उसके क्या हैं। अब हम कहते हैं जी अप्रेजल हो रहा है, जी फीडबैक सेशन नहीं हुआ। क्या हमने कभी उनको ट्रेन किया हाउ टू गिव अ पॉजिटिव फीडबैक एंड अ नेगेटिव फीडबैक? पॉजिटिव फीडबैक अच्छा है, हाँ ठीक है, नेगेटिव फीडबैक वो डालेगा HR पे। आप बेल कर्व लाते हो कंपनीज में, फोर्स रैंकिंग HR पे आती है कि जी हमने तो तुम्हें अच्छा कहा था मगर उनकी फोर्स रैंकिंग थी तो उसी की वजह से हमने तुम्हें अनएक्सेप्टेबल कर दिया या नीड इम्प्रूवमेंट कर दिया। उसमें मैं सबको चैलेंज करती हूँ, डिड वी आस्क देम टू पुट देम इन एन अनएक्सेप्टेबल और नीड इम्प्रूवमेंट? वाई दे हैव नॉट पुट इन एन एक्सेलेंट और वेरी गुड? So there are ways to look into it. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का डिलेमा सिर्फ ये है कि इसकी सही एसेंस ना HR वाले समझ पाए हैं ना ऑर्गेनाइजेशन समझ पाई है। HR वाले इसलिए नहीं समझ पाए हैं कि उनको काम करना पड़ता है, कि गोल सेटिंग्स भी करनी है, रिव्यूज़ भी करने हैं, मिड ईयर भी करना है। अगर मिड ईयर में नीड इम्प्रूवमेंट आ गई तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान भी बनाना है। तो बेसिकली जो रोल HR का है वो सिर्फ ये है कि जी फाइलें भर दो, कह दो अप्रेजल हो गया। आई एम सॉरी टू से बट ये रोल है जो HR वाले आजकल इंडस्ट्री में कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं, कुछ बेहतरीन रोल कर रहे हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्म हुई है वक्त के साथ साथ। ACR से आज हम PMS को खुल के 2-वे कंटिन्यूस फीडबैक की बात करते हैं, वरना ACR में तो व्हेन आई वाज इन अ बैंक इतने खद्दे आते थे, 14,000 एम्प्लॉय के फाइल पे तो ACR हो गया, नोबडी नोज अबाउट इट। सो इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म कर रही है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस आ रही हैं, दैट इज़ द रीज़न कि आज हम HR की बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो पहले HR मैनकॉम में भी नहीं बैठता था। They were not part of management committees. Absolutely. There were no HR committees. There was no board HR committees to work and to listen. तो ये तमाम कल्चरल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चीज़ें अच्छी हैं, चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए। बीइंग एन HR प्रैक्टिशनर ये ना हो कि हम पिछले 10 साल फिर पीछे चले जाए। All right, so एक चीज, दो चीजें आई थिंक आई पर्सनली डिसएग्री। बात आवाज आ रही है? आपके ख्याल में इस वक्त सबसे अच्छी रिक्रूटमेंट कौन करता है? अपने लिए जी कौन करता है? नहीं, अपने लिए। इट्स लाइक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एज नॉट एज अटेंडर। रिक्रूटर नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं। विच ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट रिक्रूटर? जी एग्जैक्टली। यू नो व्हाई? दे डोंट हैव दिस लिबर्टी कि मेरा लेफ्टिनेंट जनरल काम नहीं कर रहा है तो मैं बाहर से 2 ले आता हूँ। When they hire a cadet, they hire their army chief. पता नहीं कितने साल पुराना सिस्टम है, स्टिल वर्किंग। तो जैसे मैंने पहले कहा था, ये ना देखें बिल्ली काली है या सफेद, चूहे पकड़ रही है नहीं पकड़ रही है देख लें। चूहे तो पकड़ रही, ठीक है ना? तो अगर आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ACR वाला भी है और अगर वो चूहे पकड़ रहा है तो बहुत अच्छा सिस्टम है। और अगर आपने 360 लेकर आ गए हैं और आपको पता भी नहीं है कि 360 से क्या करना है, ठीक है, तो आप उसको उठाएं और कहीं डाल दें साइड में। आई हैव सीन ऑर्गेनाइजेशन
जहाँ बैलेंस स्कोर कार्ड है और किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। तो बेहतर है कि ACR कर ले। सेकंड, हम कहते हैं कि जब कहते हैं ना कि ये HR की ओनरशिप है, तो सबके जहन में ये आता है कि शुरू से लेके nth लेवल तक का काम HR ने करना है। फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पेमेंट की है तो पेमेंट की रिक्विजिशन अगर आपके डिपार्टमेंट की है आपको रेस करनी पड़ती है। वी फेल टू मेक दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज इन HR where the other department feel their responsibility towards Very well said. any of the process. So, all right, we would like to open the floor now for question and answer session. Before we do that, actually, I think some very pertinent points have been raised by each of you. Faiza talked about the ongoing nature of performance management. It's not a one-time, one-off activity. Amreen talked about a lot of things where we need to develop business acumen in order to serve the organization better and be a better HR professional as well from that perspective. And the fundamental, तहमीना ने भी और अख्तर ने भी जो fundamentals की बात की कि fundamentals change नहीं होते, manifestations change होती हैं, tools change होते हैं, जो core intent और objective है वो वही रहता है where you have to measure performance in the best interest of the organization. तो ये बड़ी important बात है, especially the youngsters who are sitting here, they need to understand. इसके बाद आई थिंक अमजद ने एक बड़ी अच्छी बात की थी जो शायद मैं उतनी अच्छी तरह नहीं समझा पाता, जो उन्होंने कहा कि अज़ल से एक ही मंजर है पर आँखें बदलती हैं. सो दैट इज व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन. सो यस, क्वेश्चन. जी इरफान. अस्सलाम वालेकुम, आई एम इरफान मंगी. सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा एनलाइटन किया. एक तो ये कमेंट था एंड देन देयर आर टू क्वेश्चंस. Number one, we had a lot of different tools and techniques of performance management. I think मैं सुनना चाह रहा था या समझना चाह रहा था कि पहले कोई डिफाइन तो करे कि ये मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, जिसके अंदर ये टूल्स की बात कर रहे थे आप. तो वो आई थिंक देयर इज अ गैप. वो आप में से किसी ने नहीं किया कि एक्चुअली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की जब हम बात कर रहे थे तो टूल्स टेक्निक्स पे बहुत ज़बरदस्त जोर रहा, which is fine, but what consists of a management system, nobody explained. And then the second question is, जो एनुअल हमारी मैं इसको कहता हूँ सालाना उर्स होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का. तो ये जो सिचुएशनल परफॉर्मेंस होती है उसका इम्पैक्ट ओवरऑल एनुअल मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे कितना होता है? थैंक यू वेरी मच. आपके दूसरी बात का जवाब मैं पहले देती हूँ. आप कि जो सिचुएशनल परफॉर्मेंस होती है या बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय होता है उसका इम्पैक्ट अप्रेजल पे कैसे होता है. सो वो बहुत पॉजिटिव होता है अगर उसका ओवरऑल बिहेवियर बहुत पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर गोल सेटिंग टाइमली नहीं होगी और कैरेट और स्टिक टाइमली नहीं चलेगा तो रीसेंसी इफेक्ट की वजह से जो अप्रेजर होगा, जो अप्रेज कर रहा है परफॉर्मेंस को, वो इस अफेक्ट में आ जाएगा और उसकी रेटिंग अफेक्ट करेगी एम्प्लॉय की, क्योंकि रीसेंट पास में उसने कोई परफॉर्मेंस दी हो जो कि बहुत अच्छी थी लेकिन कंसिस्टेंट नहीं थी थ्रू आउट द ईयर. सो यस, रीसेंसी इफेक्ट में इम्पैक्ट द ओवरऑल आउटकम ऑफ योर ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. It can be vice versa. Because you see, हमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के फ़ायदा क्या है कि एक तो क्लियर एक्सपेक्टेशन ऑफ द बिजनेस एंड द एम्प्लॉय वर्कर सेट हो जाती है साल के शुरू में ही कि तुम ये करोगे तो तुम ये एक्सपेक्ट करना, और कंपनी तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, और इसके रिजल्ट में क्लियर अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाती है. एम्प्लॉय को पता है कि मैं क्या करूँगा तो मुझे क्या रिवॉर्ड या ऑन द कॉन्ट्ररी क्या मिलेगा, और इन दोनों के यूनानिमस कॉम्बो से आपकी ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस डिपिक्ट होती है साल के आखिर के P&L के अंदर. ठीक है, जब ये पूरी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट ब्लॉक बाय ब्लॉक होगी कल्चरल, तभी आपका ये जो रीसेंसी इफेक्ट आया और जो अप्रेजर है वो किसी इंप्रेशन में आए बगैर ट्रांसपेरेंट फेयर अप्रेजल करने में कामयाब हो सकेगा. पहली चीज़. दूसरा सवाल आपने किया, पहला सवाल आपने किया था कि मैनेजमेंट क्या है.
राइट? मैनेजमेंट सिस्टम के, अब देखें हम बात कर रहे हैं इस वक्त अप्रेजल की, अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की। परफॉर्मेंस किसकी बात हो रही है? कमर्शियल बिजनेस की। कमर्शियल बिजनेस के कुछ पिलर्स होते हैं, उन पिलर्स में रिसोर्सेज होती हैं जिसके अंदर आपकी टेक्नोलॉजी भी है, आपके एसेट्स भी हैं, और सबसे बड़ा एसेट तो आपका ह्यूमन कैपिटल है। सो ये जो डिफरेंट पिलर्स हैं उनको बाइंड करके खड़ा रहना ताकि बिजनेस की जो अंपायर है वो खड़ी रहे, बैलेंस, ये मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स हैं। सो और इस फंडामेंटल को टेक्नोलॉजी चलानी है, कौन चलाएगा? ह्यूमन। रिसोर्स एलोकेशन करनी है, चाहे फाइनेंसेस हो चाहे एडमिन हो, कौन करेगा? ह्यूमन। सप्लाई चेन की सिस्टम तो आपने ERP लगा दिया, लेकिन उस ERP या सॉफ्टवेयर को हैंडल कौन करेगा? ह्यूमन। सो सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट डिफ़िकल्टी आता है वो या चैलेंज आता है वो ह्यूमन कैपिटल है। मशीन इज़ प्रोग्रामेबल बट वी एज ह्यूमन इंडिविजुअल we are not animals who can be tied up and controlled. We cannot control. We can be trained. So सबसे difficult impact या element in the total business management, सारी management different जो है वो difficult होती है, लेकिन अगर मैं वेटेज दूँ तो सबसे हायर वेटेज मैं दूंगी ह्यूमन की। और क्या ही अच्छा हो जाए कि मैं अपने ओनर को एज एन HR पार्टनर ये समझाने में कामयाब हो जाऊँ कि आपने फाइनेंशियल और सेल्स के टारगेट्स तो सेट कर दिए, लेकिन उसको अचीव करने के लिए इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव सेट कर लो। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की मद में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, डेटा ड्रिवन रिजल्ट्स निकलेंगे, फ्यूचर के डिसीजंस उस डेटा, उस सिस्टमैटिक नंबर्स के ऊपर जनरेट करेंगे। जिसको नवाजा जा रहा है, यानी कि अगर प्रमोशन हो रही है या बेस्ट परफॉर्मर है, उसको भी पता हो कि क्यों हुआ, और आपकी पूरी यूनिवर्स को भी पता हो कि इसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों हुआ। बोथ वेज, एक्सीलेंट भी और नीड इम्प्रूवमेंट वाले के लिए भी। लेकिन अगेन मेरा आई डोंट नो व्हाई बट मेरा खुलासा सिर्फ यही होता है कि वी एज HR प्रोफेशनल्स नीड टू अर्न द पोजिशनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक बिजनेस पार्टनर। जब मैं अपने ऑफिस से निकल के बिजनेस समझूंगी, P&L समझूंगी, सेल्स समझूंगी, तभी मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और बिजनेस ग्रोथ की बात कर सकूंगी और उसकी अहमियत अपने ओनर को बता सकूंगी कि जी टाइमली कर लो, वरना साल के एंड में मुंशियों की तरह बैठे हो गए कि कितने 2 रुपए देने और 4 रुपए कैसे बचने। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सैयद हसन गुफरान नाम है मेरा, मैं इस वक्त फातिमा ग्रुप का HR हेड कर रहा हूँ। आप लोगों की बातें मैंने सुनी, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी मेरे लिए सरप्राइजिंग फैक्टर था। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में शायद चीज़ें सेटल्ड हैं। मैं अपनी कुछ लर्निंग्स लेने के लिए आया हूँ। डेफिनेटली यू गाइस आर सीनियर्स, तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अपने कुछ क्वेश्चंस कर लूँगा। मेरे लिए कुछ चीज़ें ऐसे सेटल्ड हैं कि हमारा 30 जून को साइकिल ख़त्म होता है, हम अप्रेजल कर चुके। 1 जुलाई को हमने नेक्स्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स दे दिए जो कि हमें रिसीव भी हो गए, तो चीज़ें हमारे पास कुछ शायद सेटल्ड हो चुकी हैं। मैं जो चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी अपनी लर्निंग लेना चाह रहा हूँ आप लोगों से। मेरे लिए इशू ये आता है कि जब मैं परफॉर्मेंस अप्रेजल कंप्लीट करके जाके डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट के पास बैठता हूँ, तो वो जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं दे आर नॉट देयर। अब मुझे वो केस डिफेंड करना है। एक तो मैं बेल कर्व आपसे ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे बेल कर्व परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से मुतमईन नहीं। मुझे लगता है कि किसी का जुल्म और ज़्यादती है। और दूसरा, वहाँ पे कुछ तो ऐसे केसेस होते हैं वो पूरा सुन रहे होते हैं, सब बताओ क्या लाए हो, किसका एक्सीलेंट है, किसका नीड इम्प्रूवमेंट है, क्या मीट एक्सपेक्टेशन है। और उसके बाद उनकी सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ उन लोगों में हो रही होती है जिनको वो एक्चुअली जानते ही नहीं कि वो परफॉर्म क्या कर रहे हैं। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इसको ये %। तो वो उस सिचुएशन को समटाइम्स मेरे लिए डील करना मुश्किल होता है, डिफेंड नहीं कर पाता। सेकेंडली, अब वो एक परफॉर्मेंस बता देते हैं जी एक्सीलेंट वाले को इतने दे दो, मीट वाले को इतने दे दो, ये % डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जहाँ पे मुझे कहीं लगता है कि मेरे कुछ ऐसा स्टाफ है वो उनके साथ जस्टिफाइड या अच्छा अप्रेज नहीं हुआ, तो हम उनके लिए स्पेशल अप्रेजल मांगते हैं। इसको भी मुझे डिफेंड करना पड़ता है बीइंग HR। मुझे कहीं ये फील होता है कि इसको डिफेंड मुझे नहीं करना चाहिए, जो उसका डिपार्टमेंटल हेड है उसको एक्चुअली डिफेंड करना चाहिए, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी HR के ऊपर है। और मैं ऐसा नहीं कि इसी ऑर्गेनाइजेशन में, इससे पहले भी हम ही डिफेंड करते थे। हम ही कहीं हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो अप्रेजल उसके लिए ले आते हैं, कहीं हम नहीं ले पाते। तो इस पर मुझे एक तो एडवाइस करते हैं कि जब हम इस सिचुएशन में हों तो हाउ टू डील, और बेल कर्व जो है इसके बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं, ये मेरे दोस्तों।
आपका जो पहला लास्ट सवाल है कि सैलरी है और उसको किस तरह करते हैं, देखिए अगर मार्केट एडजस्टमेंट्स आ रही हैं आपके पास इंक्रीमेंट में, तो क्या आप लोग कोई इंडस्ट्री सर्वे करते हो कि आपका जो पेरोल है या आपके जो एम्प्लॉई हैं वो कितने परसेंटाइल पे हैं? योर मिडिल मैनेजमेंट इज़ ऑन 50th परसेंटाइल और 25th परसेंटाइल, और वो कौन से लोग हैं जो आपके आउटलायर्स हो रहे हैं आइदर मिनिमम और मैक्सिमम? अगर आपके पास ये डेटा मौजूद है तो ये सवाल आना नहीं चाहिए डिपार्टमेंट से, क्योंकि इसका एक रेटिंग स्केल होता है कि आपको 3 साल में अपने स्कोर परसेंटाइल को मीट करना है। आपके कंपनी में एस्पिरेशन क्या है कि यू वांट टू बी ऑन 50th परसेंटाइल, you want to be on a 75th percentile, or you want to be on a 25th percentile. That needs to be decided. That's the first part. The second part is जब ये चीज़ें होंगी ऑटोमेटिकली मार्केट एडजस्टमेंट्स नहीं आएंगे, क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे कि जी मार्केट में ये तनख्वाह ले रहा है तो मैं क्यों दूँ आगे, और अगर ये मार्केट से कम है तो फिर आपके पास जो है जॉब रोल्स शुरू हो जाएंगे कि क्या ये जॉब इस वर्थ की है, तो आपके पास हेज इवैल्यूएशन शुरू हो जाएगी कि ये n-1 है या n-2 है। दैट इज़ द सेकेंड पार्ट। कमिंग बैक टू द बेल कर्व, देखिए कुछ कंपनीज़ के लिए बेल कर्व बहुत अच्छा है, कुछ कंपनीज़ के लिए बेल कर्व बहुत बुरा है। मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं बेल कर्व को सपोर्ट करती हूँ। अब सब ये कहेंगे 30 साल का तजुर्बा है, खातून वो पुरानी हो गई हैं तो करती हैं। वाई? देयर आर 2 reasons टू डू दैट। हमारे यहाँ टेंडेंसी है कि अगर हम कोई फिल्टर नहीं लगाएं तो सब अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स लॉस में है मगर लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, बट फोर्स रैंकिंग जहाँ भी आएगी यू नीड टू आइडेंटिफाई योर हाई परफॉर्मर्स एंड द लो परफॉर्मर्स, एंड यू वांट टू रिटेन योर हाई परफॉर्मर्स। आप लो परफॉर्मर आप देख लो कहीं भी होंगे, वो कभी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक खुद ना कहें, बट हाई परफॉर्मर आपके छोड़ भी रहे होंगे, आप मार्केट प्रीमियम से लोग ला भी रहे होंगे और ब्लैकमेल भी हो रहे होंगे कि उसको कह रहे होगे अच्छा मत जाओ हम 30% बढ़ा देते हैं 20%। तो बेल कर्व में यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन हॉर्सेस एंड डोंकीज, ठीक है। अच्छा, बेल कर्व को मैं क्यों सपोर्ट करती हूँ? बेल कर्व को मैं इसलिए सपोर्ट करती हूँ कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है तो बेल कर्व रखो, और बेल कर्व 3 या 4 साल से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में मत चलाओ कि वंस द बेल कर्व इज डन, आपका कल्चर ट्रांसफॉर्म हो गया, आपके नॉन परफॉर्मर्स या तो बेहतर हो गए हैं या सिस्टम से बाहर चले गए हैं, तो फिर आप उस अप्रोच को लेके आगे चलो। बट देयर आर वेज टू मैनेज इट। आप जो अपनी बात कर रहे हो कि आप मैं बेल कर्व, पहले तो मुझे बताओ आप लोग डिपार्टमेंट के बेल कर्व क्यों लगा रहे हो? दिस इज़ अ डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई 5% अगर आउटस्टैंडिंग मीट करना है और 10 पे लाए हो तो 5 करके दो। हमें क्या पता आप सारा दिन क्या काम किससे करा रहे हैं। अगर 5% अनएक्सेप्टेबल है और आपने 2% दिया है और मेजॉरिटी आपकी वेरी गुड में है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो HR का रोल ये है कि आप बेल कर्व अचीव कराएं, आप HODs के साथ बैठें और उनको बताएं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में आज से 10 साल पहले बेल कर्व लगाया था और 3 साल के बाद मैंने उसको ऑब्सोलीट करके हटा दिया था क्योंकि हम मैच्योर हो गए थे। सो द थिंग इज कि इसमें आपको देखनी होगी कि आपकी यहाँ स्ट्रैटेजी चल क्या रही है और आपके यहाँ कल्चर क्या चल रहा है। क्योंकि HR के उसमें मैं अशर को एक बात कहती हूँ, भाई HR का कल्चर है या एग्रीकल्चर है? सो अगर कल्चर है तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी बातें करने में, बट अगर एग्रीकल्चर है तो उसमें ज़रा टाइम लगेगा आगे बढ़ने में। I want to add on here, आपका ये जो कंसर्न है that when you go to the authority and you get into the position to justify the departmental performances, so जो stages हैं performance management system की, उसके अंदर एक कंपोनेंट है परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड एवेल्युएशन का, ठीक है, जिसमें फीडबैक आ जाता है, जिसमें रेटिंग आ जाती है, जिसमें एवेल्युएशन होती है, असेसमेंट होती है। आई वुड सजेस्ट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऐड ऑन अ कैलिब्रेशन प्रोसेस इनटू इट, ठीक है। व्हाट इट इज फॉर एग्जांपल मिस्टर ए वाज गिवन extraordinary rating or the extraordinary performance review, right? But you see that this person might be, for any reason, maybe a favorite person of the departmental head.
Now you want to see if everybody else, other departmental managers, also reviews his performance against the standard the same way or not. That is the calibration process. ठीक है, आप उसी performance को against the standards review करवाएं different departmental managers से and see if the result is the same. If it is not same, then put it into a challenge process. ठीक है? This would bring in more transparency and objectivity. Subjectivity जो है वो खत्म हो जाएगी, and then when you would take up this process finally to the authority who is signing off all the appraisals, तो आप उसको बता सकते हैं ये अकेले डिपार्टमेंटल हेड की डिसीजन नहीं है, ये फाइजा को 5 मिलेगा, नाजिया को नीड्स इम्प्रूवमेंट मिलेगा. This has come through the calibration process. You can also bring more transparency and sanity into it if you can incorporate 360 degree. ठीक है, कंपनीज बहुत बड़ी होती हैं, वो यूजुअली अडॉप्ट भी कर लेती हैं और कुछ टाइम को सेव करने के लिए अवॉइड भी करती हैं. ठीक है, बट यू डोंट हैव टू रियली गो टू 10 पीपल टू टेक नाजिया मतीन फीडबैक. ठीक है, आप 4 लोगों को पिक कर सकते हैं, मे बी 1 फ्रॉम द सुपरवाइजर, 2 फ्रॉम द peers and 1 from the subordinate, and then go through it. Give the same standard structured question to everyone. They will fill it out, put the review on the performance, and you will see how Nazia Mateen has performed. All right. So there are 2 processes. One is calibration, the other one is 360, to have more justification to the process and the performance. I would like to add here, bell curve के साथ 360 नहीं कर सकते आप. When there is a bell curve, there is not 360. If there is a 360, then there is no bell curve. They both are oxymorons. One comment and my question is linked to the comment. So अगर हम पिछले 30 years की study देखें performance management में, so 2 out of 3 companies any time in the last 30 years are not happy with the performance system. या तो वो revamp कर रही हैं या they wanted to revamp, right? और हमने exactly same numbers देखे हैं coming out of COVID and coming out of financial crisis as well. Basically what it means is at least in the last 15 years nothing has changed globally. कोविड के बाद 3 मेजर स्टडीज आई हैं जिसमें हम इनको डाइसेक्ट करा क्या है कि लीडर्स परसेप्शन ऑफ देयर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजर्स परसेप्शन एंड देन द एम्प्लॉइज परसेप्शन. अनफॉर्चुनेटली लीडर और मैनेजर्स जो हैं वो एक तरफ सोचते हैं, दे ओवरली थिंक अबाउट दैट देयर सिस्टम्स आर मोर इफेक्टिव, एम्प्लॉइज आर नॉट. सो हम जो सारी कहानी कर रहे हैं कि HR में हम जो भी करते हैं अल्टीमेटली द एम्प्लॉइज आर नॉट हैप्पी. So my question is, why I would like to get your views. Why do you think that is the case, and what can we do to correct that? I would like to answer this. Achha, just a moment. Yes, you respond to that question. But I have one comment for everyone here before we move on with the session. It's going actually, as far as I'm concerned, it's very interesting discussion that has evolved. One thing that all of us, especially the youngsters, that need to keep in mind is that it was mentioned by one of the panelists here, HR is strategy of the organization. कुछ ऐसी organizations को मैं बहुत करीब से जानता हूँ जो let's say for example high post को hire ही नहीं करना चाहती because their business is such where they need more stables in the organization, and some are such who only want to hire rock stars. So HR strategy will dictate that in alignment with the business strategy of the organization कि आपको resource चाहिए कैसा है. Then you will have to come up with the strategies to manage their performance, जो इरफान ने पूछा था. दूसरी एक बड़ी important चीज़ ये है that at which stage of evolution that organization exists. हमने बहुत सारी बातें जो की feedback देने की, calibration की, ये depend करता है उस organization की evolve कितनी हुई है. अगर वो बिल्कुल नेसेंट स्टेज पर है वहाँ हम ये बात करेंगे तो इट विल बैकफायर. वो तो आसान सा फॉर्म नहीं भर पा रहे, हम उनसे कह रहे हैं कि जी हम ये करने जा रहे हैं XYZ, सो इट्स नॉट गोना. या वन ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू इवॉल्व एंड देन HR हैज टू प्ले अ रोल एज ऑल ऑफ अस हैव सेड टू प्रिपेयर देम कि वो बेहतर फीडबैक दे सकें, बेहतर कैलिब्रेट कर सकें, इस प्रोसेस की एफिकेसी को समझ सकें. ओनली देन वी कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट. प्लीज गो अहेड. Yeah, thank you for the question. It's very important to understand this also.
कि हम जब ये बना रहे होते हैं पूरे ऑब्जेक्टिव्स एंड KPIs एंड परफॉर्मेंस सिस्टम और इसकी अप्रेजल डायलॉग कैसे होगी, कब कब होगी, तो हम उसमें एम्प्लॉई की बाय इन नहीं लेते. सो जब बाय इन नहीं लेते तो वो पॉपुलर नहीं होती स्कीम, और जब स्कीम पॉपुलर नहीं होती तो इस तरह हमारे पास रिटेलिएशन आती है या ग्रीवियंसेस आते हैं एम्प्लॉयज़ के. सो अगेन कम्युनिकेशन इज़ दी की. फॉर एग्जाम्पल, साल के शुरू में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना टारगेट और गोल इस साल का सेट किया. उस गोल को अचीव करने के लिए फ़ौरन से HR ने अपनी सीट संभाली स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनने की, और वो सीट पे बैठा और उसने डिपार्टमेंट्स के HODs के साथ मिलकर मोटे मोटे ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, और फिर HOD ने अपनी टीम के बेस्ट टैलेंट को देखते हुए अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटेंसीज एंड जॉब रोल्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शन उनके KPI सेट कर लिए, और इस तरह से हंसी खुशी डिपार्टमेंट अपने गोल्स को अचीव करने लग गया, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल बिजनेस के ऑब्जेक्टिव पे आया. अब इस सारे प्रोसेस में मैंने कहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स. सो इस सारे प्रोसेस के अंदर वो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है और प्रोडक्टिविटी या इनपुट कर रहा है और अपने काम से उस पूरे प्रोसेस को हेल्प कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि काफिला कहाँ जा रहा है, वो ये काम क्यों कर रहा है, उसके ये काम करने से उसको क्या फ़ायदा है और उसकी डिपार्टमेंट को क्या फ़ायदा है, उस प्रोसेस को और उसकी कंपनी को क्या फ़ायदा है. सो इसका मतलब है कि आपका एम्प्लॉय डिसएंगेज्ड है. वो एक क्लर्क है जिसको आपने एक टास्क दिया, वो बग़ैर किसी विजन के वो टास्क कंप्लीट कर रहा है. उसी का साल के एंड में आप अप्रेजल करते हो, अच्छा किया तो इतने पैसे बढ़ गए, इतना परसेंटेज बढ़ गया, बहुत अच्छा किया तो प्रमोशन हो गई, वरना आ जाओ अपने डेवलपमेंट प्लान के ऊपर. So the key is the buy-in of your stakeholder. Employee is the greatest stakeholder and the element of your performance management system of an organization. ठीक है, फ्री में नहीं होता कुछ भी, हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट लग रही होती है. कभी कभी वो इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही होती है, कभी कभी वो इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट नज़र नहीं आ रही होती. सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी ऐसा ही है. अगेन, हम एज ए ह्यूमन, हमें कैरेट तो बहुत पसंद है, हमें स्टिक नहीं पसंद. और एज अ मैनेजर मैं पॉपुलर होना चाहता हूँ. मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा एम्प्लॉय मुझे कहे कि यार अमरीन बड़ी सख्त मैनेजर है, राइट. मैं कुछ भी कर लूँ, शी इज़ नॉट अप्रेजिंग मी, और वो मेरी तारीफ़ नहीं कर रही. अमरीन तारीफ़ क्यों नहीं कर रही, उसका रैशनल है उसके KPIs जो डिज़ाइन करके दिए हुए थे कि भाई आपने परफॉर्म करना था, आप करो, आपको तारीफ़ मिल जाएगी. सो एम्प्लॉय को इंगेज करना बहुत ज़रूरी है इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को पॉपुलर करने के लिए. इसके लिए HR जो बिजनेस पार्टनर्स हैं वो चेंज एजेंट का काम कर रहे होते हैं. पहले तो उन्होंने अपना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी अपने CEO को बेची कि बिज़नेस को कैसे फ़ायदा होगा, फिर बिठा के कमरे में अपने पूरे स्ट्रैटेजिक HODs को या डिविजनल हेड्स को बेची कि इससे आपके डिवीज़न को और आपकी टैलेंट मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा होगा, और उसके बाद एम्प्लॉय को बेची, क्योंकि जो टैलेंट है आपका वो चाहता है कि क्योंकि मैं हायर अचीवर हूँ, हाई अचीवमेंट पे मुझे हाई रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और जो अंडर परफॉर्मर होगा वो कभी भी हाईलाइट नहीं होना चाहेगा. वो चाहेगा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो ही ना, मैं बुरा काम करता हूँ या स्लीपिंग पार्टनर ऑफ द टीम हूँ, किसी को पता ही ना लगे, गोल अचीव हो जाए, सबको एक जैसा मिल जाए. और ऐसा होता है. अवारी टावर्स में मैं आपको एक 5 मिनट लूँगी, 2 मिनट लूँगी टू एक्सप्लेन द रियल एक्सपीरियंस. ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली बिजनेस, बाबा के एम्प्लॉयज़ हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं. प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो नया रिसोर्स टैलेंट पूल इन होता है, साल, 1.5 साल, 2 साल में चला जाता है, पुराने लोग तो नहीं जा रहे. ऐसे में दिनशा ने कहा कि जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम आनी चाहिए. फ्लैट 10% अप्रेजल ऑन एवरी ईयर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द बिजनेस एज वेल. उस वक्त द चैलेंज वॉज कि ये पूरी चेंज मैनेजमेंट की साइकिल चली. परफॉर्मेंस होती क्या है, KPIs होती क्या है, ऑब्जेक्टिव सेटिंग होती क्या है, सब बातें पहली दफ़ा हो रही थी वहाँ पे. सो ये बातें HR एम्प्लॉय से नहीं कर सकता. ये बातें HR अपने जो राइट एंड लेफ्ट हैं, जो हमारे डायरेक्ट HODs हैं, पीयर्स हैं, उनके साथ शेयर करेगा, और अल्टीमेटली वही आपके एडवोकेट बनेंगे फॉर दी
सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद आप पकड़ते हैं एम्प्लॉयज़ में से वो परफॉर्मर्स जो रिवॉर्ड, जो टैलेंट है, जो शाइनिंग है। बेहतरीन परफॉर्मर है फायजा, उसको किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, वो कब तक बेहतरीन परफॉर्मर रहेगी? रिकॉग्निशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस परफॉर्मेंस सिस्टम ने इसको सेग्रीगेट किया और एक लिस्ट ऑफ हाई परफॉर्मर्स आपने बोर्ड्स के ऊपर, नोटिस बोर्ड्स के ऊपर, ईमेल्स के ऊपर लगा दी। सो नाउ वी नो हु द परफॉर्मर्स आर, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस सिस्टम आई नो दैट हु आर द पीपल हु आर नॉट परफॉर्मिंग। सो इस सिस्टम को बाइन कराना बहुत ज़रूरी है, और इसका बाइन सिर्फ टैलेंट पे ही होगा, उस स्लीपिंग पार्टनर के पास नहीं होगा जो परफॉर्म नहीं करता और जिसको आदत ही के 10% फ्लैट रेस लग जाती है हर दफ़ा। सो डायलॉग, कम्युनिकेशन, फ़ायदा भी दिखाएं, कैरेट भी दिखाएं और स्टिक भी दिखाएं। थैंक यू वेरी मच। या दो चीज़ें आई थिंक, एक तो पीपल विल हेट मी, जो मैं कहने जा रहा हूँ उस पर। We started off with performance management and ended up with performance appraisals. Unfortunately, questions भी हमारे पास appraisals के आ गए सारे, and हमारे जवाब भी सारे जो थे वो related appraisals से ही थे। आपने जो सवाल किया, that is again I think the most critical one, and आपने I think वो study पूरी पढ़ी होगी, आपने देखी, right? तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो फेल हुए हैं ओवर द पीरियड, उसके अंदर द कॉज वाज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, यस, बट द फेलियर ऑफ दैट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम वाज नॉट द स्ट्रेट लाइन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, बट इंस्टेड द पेरिफेरीज। जिस तरह उसने हिट किया सक्सेशन प्लानिंग को, जिस तरह उसने हिट किया रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी को, जिस तरह उसने हिट किया रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी को, ठीक है, ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो मिल के आपको ये बताती हैं कि जी मेरा जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है ये फेल किया, एंड दैट इज़ अगेन एट द एम्प्लॉई लेवल, नॉट एट द मैनेजरियल और लीडरशिप लेवल। रीज़न बीइंग के जो लीडरशिप लेवल पे, और ये जाहिर सी बात है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो मैच्योर हैं, जैसे आशर ने कहा, उनके पास सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स, अच्छे देखे हुए बने हुए उन सिस्टम्स की स्टडीज है। बेसिक सिस्टम तो ऑफ कोर्स आपको बता ही देते हैं कि जी क्या खराबी है, क्या खराबी नहीं। तो एज यू अंडरस्टैंड कि जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली उन अप्रेजल सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम्स की जो एप्लीकेशन है विद दी अदर सिस्टम्स लाइक रिवॉर्ड, और ये किसी भी सिस्टम के साथ हुआ है। ये फेलियर जो था वो SIA में भी आया था, इफ़ यू नो दी SIA। ये फेलियर जो है ये बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर भी आया था, ठीक है, एंड मे बी डोमेस्टिकेटेड सिस्टम्स इज वेल। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है बेसिकली इसकी एप्लीकेशन की और इसकी इंटीग्रेशन की विद दी रिवॉर्ड सिस्टम्स एंड दी सिस्टम्स लाइक सक्सेशन प्लानिंग एंड कैरियर। तो जब तक हम इसको इंटीग्रेट अच्छा नहीं करेंगे, एंड अगेन दैट कैन हैपन ओनली इन दोज ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपके परफॉर्मेंस सिस्टम बहुत अच्छे बने हुए हैं, एक रीजनेबल अच्छे कह लें या एक रीजनेबल हद तक मेच्योर हो गए, एंड देन यू इंटीग्रेट दैट इनटू योर रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी एंड योर सक्सेशन स्ट्रैटेजी, बाकी सारी चीज़ों के साथ। ओनली देन यू कैन इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप मुझसे पूछें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बारिंग मल्टीनेशनल जिनके पास रीजन से चीज़ें आ रही होती हैं जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, हम प्रॉब्ली अपनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के उस लेवल तक भी नहीं पहुंचे हैं जहां पे हम ये जज कर सकें कि जी जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो कितनी है, बारिंग के जी इसके मल्टी टीयर इफेक्ट्स क्या हैं, एम्प्लॉई लेवल्स पे क्या है, मैनेजरियल लेवल पे क्या है, लीडरशिप लेवल पे क्या है। मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस वक्त हमारे पास एक बड़ा चैलेंज है कि वी आर ग्रोइंग बाय 45%, वेरी हाई, लेकिन हमारे साथ बड़ा चैलेंज ये है कि एम्प्लॉई जो है ना उसको कुछ समझ में नहीं आ रही हो क्या रहा है, यू नो। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर रियली वर्किंग कि यार इसको फिक्स कैसे करना है, एंड दैट इज नॉट रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड, सक्सेशन एंड टैलेंट। इन सिस्टम की जो है ये
जो है ना, दे आर नॉट यू नो कोपिंग अप विद, दे आर इंटीग्रेटेड बट दे आर नॉट एज रोबस्ट एज परफॉर्मेंस। क्योंकि देखें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी, कि जी आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम सीधा करें ताकि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हैं, आप 4 जो भी एस्पिरेशनल गोल है वो पुल करें, सेल्स नंबर पुल करें, ये सारी चीज़ें आप पुल कर लें और आप पुल करते भी रहते हैं। तो जो लीडरशिप और मैनेजरियल लेवल पे है वहाँ पे पर्पस सर्व हो जाता है। ठीक है, आपके जो सी लेवल है वो खुश है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुश हैं, आपके जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं वो भी बड़े खुश बैठे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके टारगेट अचीव हो गए हैं, उनकी बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। बट नीचे एम्प्लॉई सिर्फ अप्रेजल नहीं देख रहा होता, उसको अपनी ग्रोथ देखनी है, उसको ये देखना है कि जी मेरे पे जितना प्रेशर है उतने मेरी अपॉर्चुनिटी यहाँ है या नहीं है, मेरे साथ क्या होगा, ये तो कहीं नहीं हिल रहा है। यू नो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इस वक्त यू नो अपॉर्चुनिटीज़ वैसे भी कम है, बाहर भी ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अनलेस यू हैव द सेम कहते हैं ना सेम पोटेंसी के आपके पास अगर सिस्टम्स रिवॉर्ड के, टैलेंट के, सक्सेशन के नहीं हैं, तो जो नीचे वाली टीयर है आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिस्टम बना लें, आई थिंक ये रिजेंटमेंट नीचे की टीयर पे रहेगी। Thank you, sir. I would like to add 2 points only. हमने यहाँ पे सबने बात की कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो बहुत क्रिटिकल फंक्शन है। हमने ये भी बात की कि परफॉर्मेंस मैनेजमेट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमने ये भी डिस्कस किया कि इट शुड बी वेरी रॉबस्ट, इट शुड बी इंटीग्रेटेड विद ऑल अदर फंक्शंस ऑफ एचआर। सो फिर क्वेश्चन ये है कि फिर इसके चैलेंजेस क्यों हैं? क्यों हमें स्टेक होल्डर की ओनरशिप नहीं मिल पाती? वो क्या इश्यूज हैं, वो चैलेंजेस क्या हैं जो उसके फेलियर का रीज़न बनते हैं? सो व्हाट आई थिंक इज़ कि not every good system, not every good practice of any other industry or all over the world is for your organization. आपको थोड़ा सा being HR, being custodian of this process ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स आपको कंसीडर करने चाहिए कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं टू ब्रिंग अ मेथडोलॉजी जो कि आपको यूज़ करनी है, जो कि सक्सेसफुल होगी। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की लेवल की मैच्योरिटी पता होनी चाहिए, स्पेशली अपने एम्प्लॉय प्रोफाइल की, इंडस्ट्री क्या है, मार्केट शेयर क्या है, साइज़ क्या है। तो तमाम मेथोडोलॉजीज़ की एक फ़िलॉसफी है, सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं, कौन सी मेथोडोलॉजी किस इंडस्ट्री के लिए है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए ये है। कि जैसे अर्शद ने भी कहा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पीछे से ये पहले समझना पड़ेगा। फिर ऑनेस्टली कम्युनिकेशन इज़, जितनी कम्युनिकेशन हो वो कम है। आपको फीडबैक लेना होगा। आप अच्छी से अच्छी चीज़ ले आते हैं लेकिन आप स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई नहीं करते। स्टेक होल्डर्स में आपका ज़ाहिर बात है एम्प्लॉई है, आप उसका सुपरवाइज़र है, लीडरशिप है, टीम है, आपकी रेगुलेटरी बॉडीज़ है, आप एचआर खुद है, और एचआर के ऑब्वियसली डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो हैं। तो क्या आपने उनको ऑनलाइन लिया, अपने सबको ऑन बोर्ड किया? अगर आपने इन सब लोगों का बाय इन नहीं लिया है तो फिर ऑब्वियसली हाउ इन द एंड ऑफ द डे यू एक्सपेक्ट कि एक प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यही मेरा ख्याल है एचआर वालों के लिए चैलेंज होता है कि हम इस प्रोसेस को टोटलिटी में देखें कि हम क्या बात कर रहे हैं और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा। अगेन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है ना, ये आई थिंक के हाइब्रिड मॉडल पे भी काम कर सकता है। बहुत सारी मेथोडोलॉजीज़ को आप मिक्स करके भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कस्टमाइज सोल्यूशन बना सकते हैं। इन व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप एक्सपेरिमेंट करें, आप इवैल्यूएट करें और आप फिर उसे दोबारा जो है फुल फोर्स के साथ, फुल थ्रॉटल दोबारा इम्प्लीमेंट करें। सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक वक्त में आप सारी चीज़ों को एक जगह अचीव नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, गो विद द फ्लो, देखना पड़ेगा। मार्केट की अपडेट्स अगर आपके पास हों तो आप अपनी प्रोसेसेस को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं और एटलीस्ट अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं। अब तहमीना की बात से मैं अग्री कर रही थी जब उन्होंने कहा कि शी इंडोर्सेस बेल कर्व। सो इवन आई डू, बिकॉज आई थिंक कि ये एक स्टैटिस्टिकल टूल तो है लेकिन ये एचआर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो क्वेश्चन रेज करे
कि जो मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, इज दिस द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस? अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 एम्प्लॉइज़ हैं और ABCDE कैटेगरी में 25 है और बेल कर्व इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, तो व्हाट डज दिस मीन? क्या इसका ये मतलब है कि आपके पास जो गोल सेटिंग हुई थी वो सही नहीं है? तो बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं और ऑब्वियसली ये कोई फोर्स नहीं है कि आपको इन एनी केस आपको बेल शेप में लाना ही लाना है। ये तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी पे, उस वक्त की सिचुएशन पे, और देयर मेनी अदर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट्स कि आप किस तरह से बेल कर्व को प्रेजेंट करें और जस्टिफाई करें। नॉट एवरी टाइम द राइट बेल कर्व शेप जो आपकी है वही जो होगी वो इम्प्लीमेंट होगी और ऑर्गेनाइजेशन को समझ में आएगी। सो दिस इज माय 2 सेंस। थैंक यू। अच्छा, आई हैव 2 क्वेश्चंस, वन फॉर फाइजा एंड वन फॉर तहमीना। अख्तर साहब को तो हमने पूरा फर्रा दे दिया। फाइजा, हाउ डू यू मैनेज परफॉर्मेंस इन अ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? एंड फॉर तहमीना, हाउ डू यू मैनेज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स इन अ सेठिया कल्चर विद लॉट्स ऑफ ठेकेदार्स? जी सर, प्लीज। एग्जैक्टली, बिकॉज यही तो मालूम करना है हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे होती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। रक्षंदा, क्वेश्चन नंबर 1, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नहीं होती, ACR होता है। तो बंदे को पता ही नहीं चलता कि उसके ऊपर ट्रैक्टर गुजरा कब है। तो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। द सेकेंड पार्ट इज सेठिया एंड नॉन सेठिया ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर आप मुझसे पूछें, तमाम ऑर्गेनाइजेशन सेठिया हैं। सो अब सेठिया और नॉन सेठिया तो बचा ही नहीं। हाँ, अगर आप कल्चर लेके आ रहे हैं तो आप इसको बिट्स एंड पीसेस में लेके आए। अगर आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इनिशिएट करना है, आप एकदम से पूरी कंपनी में नहीं लाएं। आप पहले अपने टॉप मैनेजमेंट को लेके आए, फिर आप अपनी मिडिल मैनेजमेंट को लाएं। देखिए, अगर आपको वो पूरी कहानी है तो देखें, फिर ये स्टार्ट होगी HR जर्नी से कि आपकी कंपनी का विजन क्या है, तो वो कहेंगे पता नहीं। कहेंगे मिशन क्या है, कभी सोचा नहीं। वैल्यूज़ क्या है, तो वो 13 वैल्यूज़ बता देंगे। और चाहे वॉक द टॉक किया है, पता नहीं 5 लोग बैठे थे तो ये कर दिया। तो अगर इस स्ट्रेटजी से बात करेंगे तो फिर आप पहले विजन पे आइए, फिर आप अपना मिशन बनाइए और फिर अपनी 4 या 5 कोर वैल्यूज़ ले आइए। उस 4-5 कोर वैल्यूज़ को कैस्केड डाउन करिए। कैसे? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एक चीज़ हम सारी बात भूल गए, इट्स नॉट ओनली गोल्स, इट्स ऑल कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट ऑल्सो। अगर हम सक्सेशन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, अगर कोई डिप्टी मैनेजर है जो कि इसने पीपल मैनेज नहीं किया है, तो उसको कोई कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट होएगी तो वो मैनेजर बनेगा। तो कसूर तो हम लोग का हो गया कि हमने मॉडल ही नहीं दिया। सो कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट इज़ द कोर। अब रही बात, आपने मेरा एक प्रोग्राम मेंशन किया है, शाना बशाना, शोल्डर टू शोल्डर। We at Yunus Textile is the pioneer in this program to launch differently able program in Pakistan in a textile industry. And we have been tagged in a United Nations as a signatory for that program. अच्छा, हम करते क्या है? हम वही वाली बात है ना, एक चाल चलते हैं जो दुनिया चल रही है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, बिजनेस स्कूल, हम भी जाएंगे। टैलेंट हायरिंग, हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉय कल्चरली फिट नहीं है, मगर हमें लेके आना है क्योंकि उसको तो बेचारा 6 महीने में खुद ब खुद भाग जाएगा। हमने ये जो डिफरेंटली एबल प्रोग्राम किया, वो ये प्रोग्राम था कि पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को लेके आए। हमने कोई मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम रन नहीं किया। इट्स अ बिजनेस स्कूल प्रोग्राम फॉर पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज़। उनका भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया। उनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू आवर्स, कि आपने उनको थोड़ा लीनियंसी फैक्टर भी देना है, आपने उनके जो स्मार्ट गोल्स बनाए हैं उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी देनी है। देखिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये जो चीज़ें हैं ना सारी, ये कल्चर से ड्राइव होती हैं। आपका CEO कहे मुझे नहीं पता, बस 10% आप हेड काउंट कम करो, अपना पेरोल कम करो, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तो किताब में चला गया। आपको पहले अपना कल्चर सेट करना है और वो काम है HR का और टॉप मैनेजमेंट का। उसके लिए HR की क्लोज डायरेक्शंस, लीडरशिप होनी चाहिए जो वो डिस्कस करे कि अगले 3 साल में आप इस कंपनी को कहाँ देखते हैं, या अगले 5 साल में क्या HR हेड को अपने रोल पता है, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। हम गोल्स की बात कर रहे हैं। हमारी टॉप मैनेजमेंट क्या कहती है जी, 10% ROI बढ़ा दें, 5% डैमेजेस को कम कर दें, हमारा गोल हो जाएगा। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस इज़ नॉट नोन।
So coming back to your part, Rakshanda, कि performance management is run through a culture driven. वो culture है तो फिर होगा, और आने वाले वक्तों में as डॉक्टर साहब rightly said, succession planning की हम कहीं बात नहीं कर रहे हैं. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से ही सक्सेशन प्लानिंग निकलती है कि जो आपके हाई परफॉर्मर्स हैं वो आपके पीयर्स में और डिफरेंट आइदर हॉरिजॉन्टल मूव या वर्टिकल मूव में वो मूव कर सकें, अदरवाइज आपके कोर पीपल कभी भी रिटेन नहीं हो पाएंगे. Thank you very much, Tehmina. We would like to invite Ibrahim Bhatt for a brief on people. Ibrahim, please. Thank you very much for sharing all of your thoughts. मेरी भी कुछ thoughts थी. मैं obviously personally my words do not carry nearly as much weight as you guys. You guys are much more experienced than me. However, I'm speaking on behalf of the organization and the system and philosophy जिसके through हम performance management कर रहे हैं. And I just wanted to share it with you guys and everyone before we wrapped up today. इसमें अगर आप there's anything that you agree with, I would love to hear about it. If there's anything you disagree with, तो वो मुझे अलग से साइड पे बता दीजिएगा सबके सामने कोशिश करके. We should avoid it. But okay, so मैंने जो बात करनी थी, it was more about goal setting. So again, just to back up, I'm speaking on behalf of people. This is the performance management philosophy that we follow, that we have followed for the past 20-25 years. Obviously, it's evolved since then. And what we have tried to do is कि we try to create a system जिसके through हमारी जो ये philosophy है ये enforce और implement हो सके across organizations. Like Tehmina said and like Faiza said, we also agree with the bell curve model, because force rating, again, अगर आपने कुछ ना कुछ implement करना है throughout the organization, तो at some point you need to enforce some things, and that's how HR जो है वो अपनी presence को feel करवाते हैं in the organization. So सबसे पहले हमने goal setting की बात करनी है. अब एक typical company के पास हम जाते हैं और हम पूछते हैं कि आप लोग अपने goals किस तरह rate कर रहे हैं, what's your rating scale? हमें सुनने को मिलता है कि जी 10 में से हम rate कर रहे हैं. For example, can you move forward? So let's say कि मेरी company में ये नुमान है. Let's imagine that this is Numan on the screen. नुमान को मैंने task दिया कि उसने goal मैंने set किया at the start of the year कि you need to reduce the time taken to complete task X. He's leading our marketing department. So कोई campaign बनना है या कोई कुछ launch होना है. मैंने उसको कहा कि आपने इसका time reduce करना है. अब नेक्स्ट प्लीज. नॉर्मली लेट्स से उस काम को 6 दिन लगते थे. साल के एंड पे नुमान ने काफ़ी मेहनत की और उस टास्क को रिड्यूस कर दिया 6 डेज से लेके 5 डेज तक. अब मुझे बताएं, दैट्स मी. अब मैं नुमान को उस दैट्स व्हाट आई होप टू लुक लाइक वन डे. सो अब नुमान ने टास्क एक्स का जो ड्यूरेशन है वो 6 दिन था, 5 दिन कर दिया. अब मैं उसको 10 में से कितनी रेटिंग दूँ इस चीज़ के लिए? कैन एनीबडी सी? 7 out of 10? एग्जैक्टली. सो मैंने तो सिर्फ टारगेट सेट किया था कि आपने टास्क रिड्यूस करना है, टाइम रिड्यूस करना है. नहीं किया. Absolutely. So all 3 answers are correct. So मसला ये है कि at the end of the year, Numan and everyone else in the organization is at the mercy of the line managers कि वो decide करें. अगर मैं इस चीज़ के लिए नुमान को 10 नंबर दे दूँ, या मैं उसको 8 नंबर दे दूँ, या मैं उसको 7 नंबर दे दूँ, all 3 ratings are correct or all 3 ratings are wrong at the same time. So what are we doing to curtail this issue? सबसे पहले तो हम 3 rating scale में believe करते हैं. 3 रेटिंग स्केल की मैं पहले बात कर लूँ कि क्यों. लेट्स से कि कुछ कंपनीज जो 5 रेटिंग स्केल पे चल रही हैं कि 3 का वाई इज़ 3 बेटर देन 5? इट्स ऑब्वियसली बेटर देन 10 बिकॉज यू नीड टू रिड्यूस द ऑप्शंस अवेलेबल टू द लाइन मैनेजर्स इन आवर ओपिनियन. वाई इज़ इट बेटर देन 5? अब आप अज्यूम करें कि 5 जो है वो वर्स्ट रेटिंग है और 1 जो है वो बेस्ट रेटिंग है. आप नुमान जो है वो साल के एंड में उसने जितना भी बुरा काम किया हो, the likelihood is कि मैं उसको 5 नहीं दूंगा, मैं उसको 4 दे दूंगा. राइट. सो रैंकिंग सिस्टम की बात करें, 5 is the worst.
नुमान ने जितना भी बुरा काम किया मैं कहा अच्छा चलो 4 दे दें, कम से कम बुरी रेटिंग है, कोई उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट तो आ जाएगी, 5 मुझे नहीं देना चाहिए, नाराज़ हो जाएगा और व्हाट नॉट। सो हमने देखा कि जब 5 रेटिंग स्केल होता है तो 1 और 5 जो है वो रेयरली दिया जाता है, विच इज़ वाई वी वांटेड टू कट इट डाउन टू अ 3 रेटिंग स्केल। अगेन व्हाट इज़ आवर फिलॉसफी, 3 के अंदर हम 2 को कहते हैं मीट्स एक्सपेक्टेशंस, 3 को कहते हैं डिड नॉट मीट एक्सपेक्टेशंस, 1 को हम कहते हैं एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। सो could you go forward? So this is what a goal setting form looks like in People Eye. सबसे पहले आपकी की अकाउंटेबिलिटी एरिया है, सो और उसकी एक वेटेज है। सो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ की अकाउंटेबिलिटी एरिया, 30% उसकी वेटेज है। मल्टीपल की अकाउंटेबिलिटी एरियाज ऐड होके आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन बन गई। वंस द जॉब डिस्क्रिप्शन इज अप्रूव्ड, अब हम उनकी अकाउंटेबिलिटी एरियाज के अगेंस्ट गोल्स ऐड करेंगे। सो मैंने नुमान का एक गोल बताया कि जी जनरेट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लीड्स, दूसरा मैंने कहा सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोस्टिंग प्लान। अब व्हाट आई हैव डन इज के रेटिंग 1, 2 और 3 के अंदर वी आर नॉट जस्ट कीपिंग इट नंबर बेस्ड, व्हाट वी आर डूइंग इन पीपल आई is that we enforce the HR और the line manager कि आपने जब एक गोल सेट किया और आपने 1, 2 और 3 रेटिंग उसकी डिफाइन की है, तो यू नीड टू पुट अ डिस्क्रिप्शन कि 2 रेटिंग जो है वो किस चीज़ को डिफाइन करती है, 1 रेटिंग किस चीज़ को डिफाइन करती है और 3 रेटिंग किस चीज़ को डिफाइन करती है। सो इससे ये होता है कि जब मैं साल के एंड में अप्रेजल कर रहा हूँ तो आई एम नॉट चूजिंग अ नंबर, आई एम चूजिंग लाइक एन MCQ, आई एम चूजिंग द डिस्क्रिप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स नुमान्स परफॉर्मेंस इन द ईयर। और जब वो सेल्फ एवेल्युएशन कर रहा है तब भी वो बस अपने आप को 10 में से नंबर नहीं दिए जा रहा, वो डिस्क्राइब करेगा जो रेटिंग उसकी परफॉर्मेंस को बेस्ट डिस्क्राइब करती है। ऑब्वियसली वो बेस्ट वाली ही चूज करेगा, लेकिन कम से कम थोड़ी सी तो शर्म आएगी ना ये करते हुए। अच्छा, द अदर एंगल दैट वी एडेड हियर इज कि 2 इज नॉट अ बैड रेटिंग। 2 का मतलब है मीट्स एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि आपको जिस काम के पैसे मिल रहे हैं, जिस काम के लिए आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, जो आपसे एक्सपेक्टेड है वो काम आप पूरा कर रहे हैं। इफ़ यू आर डूइंग दैट देन यू आर बाय ऑल मीन्स अ वेरी गुड एम्प्लॉय। सो 2 इज अ गुड रेटिंग फॉर अस। 1 पे हमने ये डिफाइन कर दिया कि अगर जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप एक्सीड करना चाहते हैं, मतलब कि दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू, यू डू नॉट हैव टू अचीव what is described in 1, but if you do want to exceed the expectations that the management has had for you, तो हमने एक रोड मैप आपको दे दिया है कि इस गोल के अगेंस्ट आप हमारी एक्सपेक्टेशंस एक्सीड जो है वो इस तरह कर सकते हैं। सो जब हम हर गोल के लिए ये डिफाइन कर लेते हैं तो फिर एक एम्प्लॉय के ऊपर वो बोझ उतर जाता है, हम उसको एक क्लैरिटी दे देते हैं कि आपसे जो एक्सपेक्टेड है वो क्या है, अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस एक्सीड करना चाहते हैं तो क्या है। एंड दूसरा ये है कि वी आर एक्चुअली रेटिंग ऑन डेमोन्स्ट्रेबल फैक्ट्स। सो आगे चलें प्लीज। सो इन दिस केस जिस तरह आपने ऐड किया था कि when I would be setting the goal for Numan, I would not be saying कि reduce task X duration, I would be saying कि rating 2 तब मिलेगी if he has reduced it by 1 day, rating 3 तब मिलेगी when he has reduced it by 3 days, has not reduced it, or rating 1 मिलेगी if they have reduced it by 3 days. So if you map this model across all of the goals that the employee has to fulfill in the year, तो कम से कम उनको एक डायरेक्ट पाथ मिल गया। द फिलॉसफी जो मैं पीपल की डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा था वो ये थी कि अगेन हमारे नज़दीक प्रैक्टिकल सेंस में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में जो 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, एक बायसनेस का है और एक लैक ऑफ क्लैरिटी का है। आई स्ट्रांगली एग्री विद व्हाट फायजा सेड एंड आई विल डेफिनेटली यूज दिस कोट अगेन के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का जो फंडामेंटल कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सो इन ऑर्डर टू एक्चुअली क्रिएट अ रोड मैप, एक एम्प्लॉई को क्लैरिटी हो। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि अगर एम्प्लॉई को पता हो कि उससे एक्सपेक्टेड क्या है तो दैट इज़ 50% ऑफ द जॉब डन देयर। So in order to create some transparency in order and in our efforts to curtail biasness, goal setting का जो हमने method develop किया है, जो कि हम बहुत जगहों पे अब implement भी कर चुके हैं, वो यही है। But obviously as Akhtar साहब said, goals is only one part of the recipe. Hows जो आपके हैं, जो आपका competency framework है, this also plays
a major role. And again, हम जब competencies की setting की बात करते हैं तो what we try to do is कि अगर let's say आपने teamwork की एक competency है या conflict management की आपकी competency है, what we try to do is कि उसको भी because हम 3 rating scale use कर रहे हैं, हम उन competencies की भी 1, 2 और 3 rating को define कर देते हैं. फ़र्क ये है कि गोल जब एलोकेट होगा तो वो यहाँ किसी डेजिग्नेशन के अगेंस्ट होगा या किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के अगेंस्ट होगा. कॉम्पिटेंसीज यू कैन एलोकेट देम अगेंस्ट अ सर्टेन सैलरी ग्रेड. जो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव से कॉम्पिटेंसी एक्सपेक्टेड है वही आपके HR के एग्जीक्यूटिव से भी हो सकती है एक्सपेक्टेड. सो दैट्स हाउ वी लाइक टू गो अबाउट दिस. So again, just to wrap up, what we like to do after the final ratings हमने receive कर ली होती हैं, आपका appraisal बन गया है, तो हम एक increment का budget set करते हैं जिसके अंदर आपकी inflation की rate को लेके आपका जो total payroll है of the employees that fall within that appraisal, उनकी अगर हम एक payroll की percentage के साथ हम एक draft बनाते हैं which we then send for approval to the CEO. And then we set an increment distribution. अब increment distribution के अंदर कभी कभार ये हमें challenge आता है कि आपका एक increment का budget set हुआ है और आपने उसको budget को meet करना है. अब अगर आप across the board 10% increment let's say 1 rating वाले लोगों को offer कर देते हैं, तो if you are exceeding your budget, तो what again जो slab based increment method है वो आपको ये कहता है कि आप 0 से 100,000 की जो let's say salary slab है उसमें जो 1 rating है उसको आप 10% इंक्रीमेंट दें, बिकॉज उसका इम्पैक्ट इतना नहीं है जितना आप अगर आप 5 लाख वाले को 10% इंक्रीमेंट दें. सो अक्रॉस द बोर्ड सेम इंक्रीमेंट देना जो है वो भी मुश्किल होता है. सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज कि वी क्रिएट स्लैब्स फॉर इंक्रीमेंट्स बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन योर सैलरी स्लैब, एंड देन वी कैन प्ले अराउंड विद दोज अंटिल वी रीच अ पॉइंट वेयर आवर बजट इज बीइंग मेट. So this was just again a brief preview into how what the philosophies that we are using for performance management. I hope that it is aligned with what our speakers shared today. If not, then you know, again, this is a great learning opportunity for myself, just like it is for everyone else. And I am very grateful for all the thoughts and concepts that you guys have shared with us today. And I hope कि आप लोग future में भी हमारे साथ इस तरह contribute करते रहेंगे to make HR education available to the public at zero cost. Thank you very much. I think one last submission from my side is, this was such an interesting subject, but the time is always short, because this perhaps needs, if we continue discussion for next 2 days, we will not end, because everyone has an experience, everyone is experiencing something in their organization. So from that perspective, we all have inputs. So I would urge you strongly to use this platform, and even otherwise as well, continue sharing so that we can improve upon it, so that we can work further upon it. It relates to humans. It will always remain subjective. Some subjectivity is always going to be there, but we need to make it as objective as possible in order to convince and create a buy-in for all stakeholders. So thank you very much for joining.